So people who label it as propaganda, I don't care about them. It is as simple as that. I really don't care about them because the whole point is that I know where it's coming from, and Indian audience is actually very, very smart. मास्क उतारो जी में आप सबका स्वागत है। मेरे साथ हैं सैवियो रॉड्रिक्स। इनके लिए अर्नव ने बहुत अच्छी इंट्रोडक्शन करी रिपब्लिक पे। उन्होंने बोला ये अर्नव को लगता है कि ये कोई एजेंट है, इनको इंटेल की इतनी नॉलेज है कि ही फील्स कि ये एजेंट है, पता नहीं पाकिस्तान के हैं कि चाइना के कि इंडिया के। चलो हम क्लियर कर लेते हैं इनसे। हाय सैवियो। Hi, Payal. बताओ क्या बोला अर्नव? Is he right? Well, Arnab is entitled to having an opinion of his own, and he's a dear friend and a brother. But I am a soldier without uniform. That's all that I am. And every one of us, and every single nationalist is a soldier without uniform. One way or the other. Absolutely right. And then we have Sameer Sharma, my buddy. And लोग जनरली चाहते हैं कि बहुत बड़े बड़े नामों को लेके YouTube पे वीडियोस बनाते हैं, पर मैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी वीडियो बनाती हूँ और मुझे इनकी और मेरी ना एक ट्यूनिंग है। इनको समझ आता है मैं क्या कह रही हूँ, मुझे समझ आता है ये क्या। हाय समीर। हैं मुझे तो कभी समझ नहीं आया ये क्या कह रही है। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं धुरंधर। इस मूवी ने तो हिला के रख दिया, स्पेशली धुरंधर पार्ट 1 ने तो हम लोग को जगाया था। इस मूवी ने जगाने के साथ साथ हम लोगों को हिला के भी रख दिया। तो चलो सैवियो से बात करते हैं। सैवियो, डिड यू लाइक द मूवी? Well, I think I like the idea that the movie decided to look at what we in our space term as soldiers without uniform. I find it really small to call them agents because they're not agents. They're soldiers without uniform, and India has got a lot of soldiers without uniform in different parts of the world, and they are very active. They are working very hard, and I think as citizens of this country, we must respect and we must appreciate the work done by soldiers without uniform to ensure that our country is secure. So what Dhurandhar does as a movie is it allows for the larger population that are unaware of soldiers without uniform that there exists in our system people of that caliber and of that commitment to the country, which I think is fantastic what Dhurandhar has managed to do. And I say that because, you know, a lot of us take our freedom, our independence for granted. True. A lot of us think that everything around the world is just happenstance. It's not happenstance. It's not coincidences. There are always plans around, and I think there are many soldiers they go unheard of. That is why I had authored the book Codename Lucifer also, which speaks about the unknown gunmen, men and women who work for this country. And I think Dhurandhar has done just that. It's taken a concept which otherwise you would have heard from CIA movies or Mossad. But India has also got a brilliant intelligence unit. We only don't talk about it because rightfully so, intelligence, the best intelligence is an intelligence you don't talk about. And Dhurandhar has only given the people of this country and outside this country a feel of what the Indian intelligence apparatus is capable of. अच्छा समीर, मैं एक बात देख रही थी कि धुरंधर ने पाकिस्तानियों को तो एक्सपोज किया जो पाकिस्तान में कि क्या हो रहा है और किस तरीके से वो भारत को हार्म पहुंचा रहे हैं और हम लोग को इतना टेररिज्म लेकर आ रहे हैं। हमारे एवरीथिंग प्लेइंग विद इकोनॉमी, एवरीथिंग दे डूइंग एवरीथिंग, इमोशंस, कम्युनलिज्म को भी बहुत हवा दे रहे हैं, पैसों का भी नुकसान कर रहे हैं। पर एक बात बहुत अच्छी लगी मुझे कि ये मूवी आने के बाद हमारे देश में कितने पाकिस्तानी रहते हैं ये एक्सपोज हो गए। आपका क्या कहना है? जो रिएक्शन दिया है कई लोग। मेरा कहना बहुत सिंपल है। हम सबको लगता है पाकिस्तान बना 1947 में। पाकिस्तान एक माइंडसेट, ये आइडिया कंसीव हो गया था 1920s में, और वो जो माइंडसेट है ना, वो सारा का सारा उस ज्योग्राफिकल लोकेशन पर नहीं है। वो काफी माइंडसेट जो है सरहद के इस पार भी है। इसीलिए हम अमूमन ये बात करते हैं कि भारत के फलाने हिस्से में मिनी पाकिस्तान है। वो क्या है? वो माइंडसेट है। वहां भारत अगर पाकिस्तान से मैच हार जाए तो कुछ पॉकेट्स में भारत में, अब नहीं, लेकिन भी होते हैं। 2015 तक तो खुल के जश्न मनता। तो वो माइंडसेट है। और ये धुरंधर ने क्या किया है कि पाकिस्तान एज ए माइंडसेट इस दुनिया में किधर भी हो ना, उसको इसने बाहर निकाला है। बिल बिला रहे हैं, दैट इज द वर्ड, बिल बिला रहे। तो अच्छा है, और बिल बिलाएं और मजा आए। जैसे हम एक नया कीटनाशक लेकर आते हैं या स्प्रे करने वाला लाते हैं और कोनों में स्प्रे करते हैं जहां हमें लगता है साफ है, यहां कुछ नहीं होगा, लेकिन उस कोने में से धीरे धीरे करके 1 2 3 4 वो जो निकलते हैं ना, धुरंधर ने वो काम किया है भारत के अंदर।
हमने बहुत सीरियस, आपने भी बहुत सीरियस जवाब दिया, इन्होंने भी बहुत सीरियस दिया, मेरा वो मूड नहीं था। अच्छा नहीं है। नहीं, मेरा मूड था कि हम धुरंधर को एक धुरंधर से जवाब दें। धुरंधर का जवाब देते हो। तो आप मुझे ये बताओ कि ये जो डिमोनेटाइजेशन दिखाया है इसमें, आपको लगा कि जो इसमें डिमोनेटाइजेशन का रीजन दिया था दैट वाज राइट, So, और इट वाज जस्ट वन पार्ट ऑफ no, I think it's a very vital part of the reason behind demonetization, which was shown in the movie. Let's understand one thing. Several years back, as shown in the first part, the plates of the currencies that were there, that belonged to India, came into the hands of the Pakistanis, and including the machine. and in that movie they showed that some Indian politicians went and gave those. Yes, that's also a fact that has been kept on record, right? So, And hidden also. well, classified information is kept for the purpose at the right time to be utilized by any government establishment or any intelligence establishment. So the demonetization, the intent of the demonetization that happened was to deal with fake currency. Unfortunately, what we have not realized that fake currency, being a business model, always finds a way, like every illegal activity, to come back into The the mainstream again. So I remember one of the agencies that was involved in printing of money, and they were blacklisted by the Indian government, and somehow they wanted a certain amount of clearance for their name, and they came to a friend of mine who then came to me and said, can you assist them? And then I asked them, I said, do you remember the guy who wrote the story first? Which means you have no idea of what you're doing. You're absolutely a fool. I was the guy who wrote the story. You're coming back to me to ask me to say that, clean you up. That's not possible. You are blacklisted. It means you will be blacklisted. Now, why am I saying that? Because demonetization crippled them for a certain period of time, and that was necessary. It was also to deal with black money that existed, but a lot of the black money was somehow found its way back into the system, and we recovered a certain amount of it, though we should have got a lot more, right? Fake currencies continue to happen because it's an industry. वो तो ये सब right? तो पता ही है, हाँ. So we still have to be alert. We still have to penetrate those networks, particularly in Pakistan, तो आपको that allows for fake currency to destabilize India. But we will not be in a bigger trouble as we were that time. अच्छा, इसमें सबसे बड़ा जो शॉक लगा था ना, वो हमने देखा तो अतीक अहमद को देखकर स्क्रीन पे इतनी ब्लिटेंटली, मतलब दिखाया, इतनी ओपनली दिखाया और बताया कि किस तरीके से वो क्या काम करता था और क्या था वो. तो कहीं ना कहीं इन्होंने इनडायरेक्टली एक कोई पॉलिटिकल पार्टी है उसके ऊपर, क्योंकि वो उसी का एमएलए रह चुका है वहां, उसकी वजह से एमपी भी रह चुका है, तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली हिट करा है वहां पे. लोगों को समझ आ रहा था कि वो कहाँ का है. मुझे ये पूछना है आपसे, क्या इस मूवी को आपको लगता है कि बीजेपी ने फंड किया होगा, कि ये एक्सपोज किया होगा, कि यहाँ की आदित्य धर ने अपने आप ही करा है, बीइंग अ नेशनलिस्ट, ये पॉलिटिसाइज करा है? ये मूवी जो है, इसको किसी एक पार्टी के प्रिज्म से देखना जो है ना, वो मायोपिक होगा. इस मूवी को आपको नेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है. नेपाल हमारा ब्रदर नेशन है, हिंदू नेशन है, इसलिए नेपाल के साथ हमारे बॉर्डर्स पोरस रहे हैं. कुछ पॉलिटिशियंस ने, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ने इस चीज का फायदा उठाया. ठीक है. और फायदा कैसे उठाया कि उन्होंने दे कनाइव्ड विद आईएसआई कि वहां से वेपन्स आ रहे हैं, वहां से ड्रग्स आ रही हैं, वहां से पैसा आ रहा है, वहां से क्रिमिनल्स आ रहे हैं. तो पॉलिटिकल पार्टी ने फायदा उठाया. अतीक की बात करें, 100 से ज्यादा केसेस थे उसके ऊपर, और उसका केस जब कोर्ट में जाता था तो कोई भी टेस्टिफाई करने के लिए सामने नहीं आ पाता था. तो वो एक फेलियर था हमारे उस टाइम के सिस्टम का, लॉ एंड ऑर्डर का भी, फॉर दैट मैटर जुडिशरी का भी. जुडिशरी का इस सेंस में कि 100 केसेस से ऊपर है, बट वो पुलिस को पुश नहीं कर पा रहे थे कि इन केसेस को आप वाटर टाइट करके लाइए ताकि कन्विक्ट कर सके. किसी के ऊपर 100 केसेस हैं, आप एक में भी कन्विक्शन नहीं दे पा रहे हैं, तो वहां भी देयर वर फ्लॉज.
और ये जो गैप्स होते हैं ना, इन गैप्स का फिर फायदा उठाने वाली आपको पॉलिटिकल पार्टीज मिल जाएंगी। हाँ, पर अभी हम अतीक की जैसे बात करें, अतीक अतीक इज ए रिफ्लेक्शन ऑफ दैट पाकिस्तानी माइंडसेट इन इंडिया, जो आज भी अतीक के नाम पर जो है दुखी हैं कि अतीक के साथ हुआ जो गलत हुआ। मुख्तार अंसारी भी एक और था यूपी में जिसकी कोई बात नहीं कर रहा आज। क्या पता धुरंधर 3 में दिखाया उठा के मुख्तार अंसारी ने प्रयागराज के एक चौक पे एक आदमी की पूरी खाल छील के उसको वहां छोड़ दिया था और थाने फोन करके बोला था यहां पड़ा है उठा लो। थैंक गॉड, मैं तो बोलता हूं कि आज यूपी में ऐसी एक सरकार है जो राष्ट्र को सर्वोपरि मानती है, एंड दैट्स व्हाट आई से, लीडरशिप मेक्स ऑल द डिफरेंस। तो वही मैंने तो एक ट्वीट भी लिखी थी कि इस मूवी को देखने के बाद आई होप लोगों को समझ आए कि कितना इम्पोर्टेंट है योगी जी का वापस आना यूपी में। अब आप मुझे ब्रीफ में आप ये बताइए सैवियो, लाइक आपने किस किस पॉलिटिकल पार्टी को इस मूवी के अगेंस्ट बोलते सुना है, और आपको क्या लगता है व्हाई दे रिएक्टिंग, व्हाई इज इट पिंचिंग देम दैट धुरंधर 1 and 2 ये दोनों में पाकिस्तान एक्सपोज हो रहा है, व्हिच पार्टीज आर गेटिंग यू नो दे आर हाइपरवेंटिलेटिंग एंड इतना ज्यादा बोल रहे हैं, दे गेटिंग डिस्टर्ब्ड, व्हिच पार्टी यू Well, थिंक? I'm not surprised. मुझे ऐसा ऐसा आश्चर्य नहीं हुआ था. I wasn't surprised that some of the political parties would be hyperventilating. But that is expected. But I think this goes, as Abhi said rightly, it goes beyond political parties. And I think people need to understand. You know, like I said, we take our, intelligence agents, the NOC, as you would call it, the non-operative colors, as being people we don't know. You know, there are so many of us that are there that don't appreciate the work done by these people who don't even get a recognition because, quite frankly, they can't. Okay, there are many who deserve medals, but they don't get the medals. You just get a pat on the back, or you will get them somebody saying, "Acha kiya bacha," good work. I mean, that's it. People don't know anything about it. No, but there are political parties who are who are very disturbed. But while those political parties will be disturbed because They're thriving on it. They believe in Aman Ki Asha. But let's also be clear on one thing: the Aman Ki Asha is the biggest bullshit this country has ever heard in a very long time. What is Aman Ki Asha when Islamic radicals from Pakistan continuously target us? We are not against Islam. Nobody in India is against Islam. Muslims are our brothers and our sisters, and we love them because they are part of our country. And do you think? But if you believe that Islamic radicalism is your way and India is not what it's supposed to be, India is not supposed to be Bharat, India is not supposed to be Hindustan, then I suggest that those same very people go to Pakistan or go to any other country they want to. This is Hindustan, whether you like it or not. This is Bharat, whether you like it or not, and this is India. Yeah, Savio, but do you feel कि हमारी बहुत सारी ऐसी पॉपुलेशन है जिनको खुश कर रही है ये पॉलिटिकल पार्टीज, दे बेसिकली अपीजमेंट ही हो गई है कि वो धुरंधर को क्रिटिसाइज इसलिए कर रही है बिकॉज दे फील कि धुरंधर को क्रिटिसाइज करेंगे तो ये सेक्शन ऑफ सोसाइटी जो हमारी है. बट धुरंधर कौन से सेक्शन ऑफ सोसाइटी भारत के अंदर को इंसल्ट किया है or showed them in a bad light? Dhurandhar is only shown Pakistanis in a bad light. But these parties are portraying as if Hindu Muslim. No, I'm sorry. The Muslim in India is different from the Islamic radical in Pakistan. Let's be clear about that. Some of the Islamic radicals in India, they can take a ticket and get out to Pakistan and I don't care. But the Muslim in India is not the Muslim in Pakistan. Let's be clear about that. Yeah, like the king of Bahrain said that अगर आपको यहाँ पे बैठ के ईरान की इतनी तारीफ करनी है और आपको ईरान के लिए इतना बुरा लग रहा है, why don't you go to Iran? Please buy the ticket and go to Iran. But इसलिए भी ये लोग ना परेशान हैं, इनकी आत्माएं अंदर से परेशान हैं, because I believe कि जो इनकी वैल्यूज है ना इनके अंदर वो मैच नहीं कर रही इनकी फिजिकल लोकेशन से. आपकी वैल्यूज वहां की, आप यहाँ पड़े हो इसलिए आप परेशान. आप जाओ, प्लॉट कट चुका है 47 में, डायरेक्शन हम दे देंगे जीपीएस की, भारत के पास है अपना जीपीएस. ये मेरा तो जब तक ये वीडियो आएगा ना, काफी लोग मूवी देख चुके होंगे जिस तरीके का रश चल रहा है और जिस तरीके के, तो फिर भी मैं बहुत लोग हैं जो 1 महीने बाद भी देखेंगे
ये थोड़ा रश खत्म होने दो ये करके, पर तब तक बहुत सारी बातें बाहर निकल आएंगी। इसमें एक बहुत अच्छी बात थी जो मैं और समीर और सैफी इकट्ठे मूवी देख रहे थे, तो मैंने समीर को बोला कि देखो इन्होंने क्या बढ़िया बात बोली है कि जाओ इसको जला देना, दोनों दोनों को जला देना। आंखों से आंसू आ गए। हाँ, तो वो ना उस टाइम समीर ने कहा हाँ ये बात तो उसने बोली है। वो आपको मूवी देख के समझ आएगा कितनी माइन्यूट, इतनी छोटी छोटी डिटेल्स हैं जो आदित्य धर ने देखिए, क्योंकि वो लोग हिंदू थे तो उसके लिए बोला उसने कि इनको जला देना। पर ये बहुत कम लोग, आप लोग ये चीजें नोटिस जरूर करना, ये आदित्य धर ने जो कर दिया ना, कमाल ही कर दिया। आई थिंक मुझे जिस बात की सबसे बड़ी खुशी है वो पता क्या है, भारत का नैरेटिव, हिंदुस्तान का नैरेटिव, इंडिया का नैरेटिव जो अभी साबिर उसकी स्टोरी टेलिंग की जो क्राफ्ट्समैनशिप है ना, उसकी क्वालिटी बेटर होगी। पहले उसकी क्वालिटी वहां वैसी नहीं थी कि लोग उसको देखना चाहें या देखें। यो 65 साल से हम लोग इतना सेक्युलरिज्म देखते आ रहे थे और ऐसे लग रहा था एज एक हिंदू होना, एक इंडियन होना एक श्राप है। वो इस मूवी ने 70 साल लग गए, उस मूवी ने आपको दिखाया, इस मूवी से आप यू फील सो प्राउड एज अ हिंदू, एज अ इंडियन। एक छोटी सी बात कहूंगा, कई बार हमें लगता है कि ये लोग हमारे बीच में बैठे हैं, लेकिन ये किस ग्रास रूट की बात कर रहे हैं, राइट? सच तो ये है कि ये और उनके नेता भी ग्रास रूट से जुड़े हैं, लेकिन भारत में ना दो ग्रास रूट है अलग। एक भारत है जो ग्रास रूट है, और एक वो पाकिस्तानी माइंडसेट का ग्रास रूट है। और इसीलिए इनके नेता चुन के आ रहे हैं, एमएलए बन रहे हैं, एमपी बन रहे हैं, इसका मतलब है उनको वोट्स की बैकिंग नहीं। तो वो मेरी प्रॉब्लम वो नेता नहीं है, मेरी प्रॉब्लम वो पॉलिटिकल पार्टी भी नहीं होती पायल। मेरी प्रॉब्लम है कि हमारे बीच में ऐसे लोग हैं जिनकी वैल्यूज, जिनका माइंडसेट हिंदुस्तान से मेल नहीं खाता, ना खाता था, ना खाता है, और ना आने वाले टाइम में खाता। एक और चीज है मैंने देखी है, मैंने अभी अरफा खानम की वीडियो देखी, मैंने अभिसार शर्मा की वीडियो देखी, फिर कई लोगों ने तो ट्वीट कर लिया, पर लोगों ने उनको उनकी ट्वीट के नीचे जवाब नहीं दिया। आई थिंक स्मार्ट हो रहे हैं इंडियंस, पेट्रियोटिक इंडियंस, उन्होंने उसके स्क्रीनशॉट लिए फिर अपने उस पर डाल के उन्होंने उसके ऊपर पोस्ट किया। ये अरफा खानम के अकॉर्डिंग आदित्य धर एक टाइप की अफीम चटवा रहा है आपको, एक अफीम खिला रहा है, सुंघा रहा है आपको, एक he's making you have hash of nationalism and patriotism which is not needed कहते हैं। और वो ये जो और वो साथ में he's not realizing कि वो ये हिंट कर रही है कि ये नेशनलिज्म और पेट्रियोटिज्म ये मतलब हिंदूज को चटा रहा है, तो दैट मीन्स वो दूसरों को क्यों नहीं चटा रहा है? Payal, बहुत good है। I'm an Indian Christian, okay, and I personally believe, and I've always believed, that a mother does not distinguish between her children. So Bharat Mata is not going to distinguish if I'm a Christian, you're a Hindu, there are Muslims. They don't. The mother doesn't do that. The divisions always happen between the children, and the divisions happen before as well. Bharat Mata will love you just the way you are if you love her back, and even if you don't love her back, right? The problem with journalists or PR agents, as I would call them, of a particular mindset, is that they want to show that we are targeting a particular community. And that is exactly what I'm trying to understand. Where is the Indian Muslim targeted in the movie Durandar? Where is it? It's not to portray. It is the Pakistani Muslim. In fact, it's not even the Pakistani Muslim. It's the Pakistani Islamic radical that is targeted in the movie. So today, if there is an Islamic radical person in our midst and he is capable of any form of jihad, whether it's love jihad, whether it's terrorism activities, whether it's anything of that nature, shouldn't we as citizens of India be worried about it? I mean, there was a time in Kerala where the church and the Islamic radicals would see eye to eye. Today they are not seeing eye to eye. So there is a reality and a fear of Islamic radicalism. I'm reiterating myself, I am not talking about the Muslims. I am talking about the Islamic radicals, and they are a completely different bent. Sadly, a large section of the Muslim community fall for this narrative. एक और चीज है इसमें,
ये जो अभिषेक शर्मा जी हैं और अल्फा खानम हैं और ये जो सबा नकवी टाइप है, ये इन लोगों को सब कुछ जाता होगा ना, यहाँ से कुछ तो पेमेंट मिलती होगी ना, कहीं कुछ तो मिलता होगा, अदरवाइज कोई फ्री में क्यों करेगा। आदित्य धर साहब फिल्म बनाइए, पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा मत करिए, जाइए भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जो आपने धुरंधर पार्ट 2 में करने की कोशिश की है वही काम तो 24 घंटे गोदी मीडिया करता है। जितना गुस्सा आपके मन में है किसी भी बात को लेकर, किसी भी बात को लेकर, अपना कारोबार नहीं चल रहा है, आपको नौकरी नहीं मिल रही है, आपका बच्चा नहीं पढ़ रहा है, आपकी सेहत ठीक नहीं है, आप जाके धुरंधर 2 देख कर आ जाइए। इनको अब ये घबराहट है कि ये जो पोलिटिसाइज, ये खुद मूवी को पोलिटिसाइज कर रहे हैं और कह रहे हैं ये बहुत पॉलिटिक्स भरा है मूवी में, और एक पर्टिकुलर पार्टी के फेवर में, बीजेपी के की फेवर में ये है। उनको ये डर है कि ये मूवी देखने के बाद फिर से योगी जी यूपी में आएंगे और इनके चांस खत्म, इनको ना 2 बेडरूम का फ्लैट मिलेगा ना ये 2 मूवी के बेडरूम वजह से योगी आदित्यनाथ नहीं, में वापस नहीं I know, but the उसके thing is- काम के वजह से वापस आने वो तो है ही, पर एक और चीज है ना, कई लोगों को मैटर करता है ये नैरेटिव। मेरा कहना तो बड़ा सिंपल है इसमें। देखिए, ये वो लोग हैं, ये बुलीज थे, हमारी सोसाइटी के बुलीज थे ये सब सेक्टर्स, ठीक है, जो ना नैरेटिव को ड्राइव करने की कोशिश करते थे। भारत इनका भी उतना ही है जितना उस ननकू का है या उस लल्लन का है जो खेत में काम कर रहा है, या उस जेकब का है जो बेचारा अपनी फैमिली को जो है गोवा में छोड़ के कहीं शिप पे काम कर रहा है, पैसे भेज रहा है और घर चल रहा है। लेकिन इन बुलीज को यहां पर सरकार के ऊपर प्रेशर डालना था ताकि ये अपने हैंडलर्स के लिए सरकार से बजट्स निकलवा सके, पॉलिसीज बनवा सके। ये रियलिटी है, पैसा मिलता है इस बात का। जैसे जैसे हिंदू जाग रहा है, और हिंदू जाग गया है, और उत्तम नगर इसका बहुत बड़ा उत्तम नगर इज एन एग्जांपल, राइट, जाग गया है। इन लोगों के भोगों की वैल्यू खत्म हो गई, क्योंकि अब ये बेचारे सड़क के किनारे, जैसे वामपंथ का इस देश में टोटल वोटर बेस कितना रह गया है, वो रेलेवेंस इनकी भी है। और एक चीज मैंने बहुत अच्छी नोटिस करी है जो इंडिया में हो रही है, कि हिंदुस्तान में हो रही है, कि पहले मुसलमान हर पार्टी को नचाता था कि मैं वोट नहीं दूंगा अगर मेरा ये काम नहीं। अब मेरे को लगता है कि हिंदू के हाथ में भी वो पावर आया बड़ी देर बाद। हिंदू भी अब कह रहा है कि भैया तुमने हमारे फेवर में काम नहीं किया, वोट नहीं मिलने वाला है। पायल, ये देश बहुत सहिष्णु है, बहुत। मैं बनारस में था 4 दिन, जिसको ये लोग फव्वारा बोल रहे हैं, वो क्या है वो सबको मालूम है। और ये लोग भारत में रहते, बनारस में रहते, उल्ला कर रहे थे, यही नहीं, जब तक कि कोर्ट ने नहीं रोका। सी, बेशर्मी की हद देखो। एंड ऑन टॉप एंड दे हैव एंड दे कैन से कि हम सहिष्णु हैं। नहीं, और अभी आपने देखा बनारस में क्या हुआ है, एक नाव को हायर करी इन्होंने, और वो नाव वाला इनको नाव दे नहीं रहा था, उसको धक्का मार के जबरदस्ती लेके गया और जबरदस्ती नाव में बैठ के इफ्तारी करी, मीट चिकन खाया और उसकी हड्डियां गंगा में फेंक के। और सुनो एक मिनट, ऊपर से महुआ मोइत्रा क्या कह रही है, तुम तो गंगा में अपनी डेड बॉडीज डालते हो, तो डेड बॉडीज भी तो तुम लोग उसमें बहाते हो। तो मीट खा रहे थे तो सुअर का ही मीट खाते, फिर तो चिकन मीट तो मीट है, फिर सुअर का मीट क्यों नहीं खाया? मतलब मीट तो मीट है ना। देखो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इफ्तारी करो, गंगा आपकी भी उतनी है जितनी हमारी है, लेकिन अनादर ना करो, रिस्पेक्टफुल रहो। सी, आप एक सिविलाइजेशन का हिस्सा हो जिसमें से आपने अपना एक फेथ का रास्ता चुना है, हमें कोई इशू नहीं है उसमें। जस्ट रिमेन रिस्पेक्टफुल, जैसे हम रिस्पेक्टफुल है आपके लेके कि ठीक है यार, आप हम में से ही हो, आपका डीएनए हमारा ही है, आपने फेथ का रास्ता चुना है, करो ना, कौन रोक रहा है आपको? आज पूरी दुनिया में आप बताओ, मुसलमान देशों में, मिडिल ईस्ट में लड़ाइयां हो रही है, ईद का दिन है, कितने लोग हैं जो मस्जिद में जाकर जो शांति से मिडिल ईस्ट में नमाज पढ़ सकते हैं? भारत में क्या चैलेंज है? नहीं, आप बस रिस्पेक्ट करो यार, लॉ की रिस्पेक्ट करो, कल्चर्स की रिस्पेक्ट करो, उससे ज्यादा भारत को कुछ नहीं चाहिए। माँ है, ऐसे सेड, माँ है, माँ ना ज्यादा नहीं एक्सपेक्ट करती, लेकिन हाँ, अगर माँ का अनादर करोगे तो कोई दूसरा भाई आके तुम्हारे कान के नीचे रख के जरूर बोलेगा, ओए माँ है, क्या कर रहे हो? अब आपने इनके अकॉर्डिंग धुरंधर प्रोपेगेंडा मूवी है, और मूवीज लाइक हैदर जिसमें कश्मीरी पंडित्स की इमोशंस का अनादर होता है, उधर की जो उनका मंदिर है उसका अनादर होता है, वो मूवी है। अब मेरा लास्ट एक चीज है, हाउ डिड यू लाइक साबिर, ये दोनों आप दोनों मुझे जवाब देना, जब एंड में एक व्यक्ति है जो बोलता है पहले भारत माता की जय बोलो, भारत में आए तो गोज बम्प्स, यू नो, मैं तो लाइक यू नो आई हैड टीयर्स इन माय आईज, रोना भी बहुत आया इस मूवी में, खुशी भी बहुत हुई, एंड वो यू नो आपको और नेशनलिस्ट बनाती है ऐसी मूवी।
मूवीज। तो आपको कैसा लगा जब आपने सुना कि पहले भारत माता की जय बोलो और बुलवा के रहा, और वो कहते हैं हिंदू डरपोक है, खुद डरपोक था, उसने So- बोल भी दिया। I'll basically, let me tell your audience that the idea of Hindustan or the idea of Hindu is not linked directly to a religion. It is linked to the land that you come from. And the land, which is Hindustan, which was a name given to it many years ago. It is also a name that's got Bharat attached to it. It's got India attached to it, which is the colonial name. You can choose whichever name you want. The fact of the matter is that everything within your ancestral blood is of Hindustan, which makes you a Hindu. So your faith is whatever you want, you know. हाँ नहीं, बट वो हिंदू उसने उन्होंने बुलवाया कि भारत माता की जय। वो Well, if कैसे you were to आप- ask me, I would put a gun onto every terrorist and make him say Bharat Mata Ki Jai. That's what I would do. I would pull the trigger after that. देखो बड़ा सिंपल है। अच्छा लगा तुमको वो सीन? मुझे वो सीन बहुत अच्छा लगा। मुझे हर वो सीन अच्छा लगेगा जहां धर्म की अधर्म के ऊपर विजय हुई, बिकॉज इन द एंड दैट्स हु वी आर एज ए कंट्री। जहां कुछ गलत होगा ना, हम उसको सहने की ताकत रखते हैं, लेकिन एक पॉइंट के बाद हमारा रिटेलिएशन भी फिर ऐसा होता है कि अधर्म के ऊपर धर्म की विजय होती आई है, हो रही है और आगे भी होगी। ये मूवी जरूर देखिएगा, मिस करने वाली है ही नहीं। और मेरे साथ एक तरफ है, ये भी बहुत नेशनलिस्ट हैं, पर ये थोड़े थम वाले नेशनलिस्ट हैं, ये अपनी बात करते हैं। ये थोड़ा रुद्र प्रताप सिंह है, ये थोड़ा गुस्सा निकाल देता है अपना, इसको एंटी नेशनलिस्ट से बहुत ज्यादा बी वेयर ऑफ इट। एंड सी यू गाइज, एट प्लीज डू गो एंड वॉच धुरंधर। Yes.